A video went viral on social media where some youngsters, youth, who, for the sake of creating content for some reels, for some money, likes and shares, took their 4x4 vehicles and entered a protected forest zone. Green turfs they destroyed through their 4x4 vehicle, driving in those eco-delicate areas. And as this video went viral on social media, there was outrage, netizens, people commenting on this, condemning this act, and also calling upon the government authorities to wake up and take action. And that's something that has happened. Deputy Commissioner Badgam on X said that they have taken action. FIR has been lodged under relevant sections of the Indian Forest Act. Then, source in the Forest Department also confirmed to us that they have taken this very seriously, because this is not a one-off incident. Of late, there has been a trend where reckless drivers, people who really give two hoots to the fragile ecology of the area, took their 4x4 guzzlers, and this really is a trend that has happened not only in this particular forest area but other eco-fragile zones as well. So after public outrage, government taking action, but it needs more, because if no strict action is taken, people are not arrested, then obviously the right precedent won't be set. Because in this case, as I said, for some content, for reels, for social media content, for some videos, they're taking law into their hands in the name of off-roading, and that really is vandalizing these green forests, these areas which obviously should be out of bound for vehicle activity, for carbon emission, because obviously these vehicles, not only they're destroying the fragile ecology, the green tracks, absolutely vandalizing them, but also as far as these vehicles are concerned, the pollution that comes in the form of the emissions are also very harmful for these eco-sensitive zones. These are high reaches, these are mountainous belts, and obviously the Forest Department needs to do more to enforce prohibition, because as I said, this action is something that is illegal under law, but the relevant sections and the implementation of the law is missing. In this case, action has happened, and the hope is, environmentalists, experts are saying that this, if right action is taken, this could act as a deterrent, so that such action, such vandalization of the fragile ecology is stopped in the future, and that too in the name of off-roading. ये ऑफ-रोडिंग और ये सारे जो रास्ते वगैरह बनते हैं, और जिससे है ना लोगों को एक्सेस मिलती है जंगलों में जाने के लिए, और इसी के आड़ में फिर जो है जंगल स्मगलर वगैरह जो है उनके लिए रास्ता बन जाता है। तो दिस इज ऑल इलीगल एक्टिविटी, ये सब बैन होना चाहिए। और इसमें जो डीसी साहब ने एक्शन ले ली है इनके खिलाफ, एफआईआर अंडर आईएफए के पर्टिकुलर सेक्शन में दे दिया है। दिस इज अ कमेंडेबल ये एक्शन है, और हमें इसको हम मतलब सराहना करते हैं। और ऐसी एक्शंस ऐसे सारे लोगों के साथ जो यहाँ पे मतलब विदाउट एनी परमिशन ऐसी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराते हैं, उनके खिलाफ होनी चाहिए। जो लोग टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, उनके खिलाफ भी ये एक्शन होनी चाहिए, ताकि हमारे जंगल बच सकें। हमने यहाँ पे आप देखिए एनपीकेपी स्कूल में इसको ग्रीन स्कूल मतलब करार देने के लिए हम प्लांटेशन पे बहुत सख्ती से जो है स्ट्रेस कर रहे हैं। बच्चे हमारे घर से पौधे लाते हैं। आप हमारे कैंपस को देखिए, ये वन ऑफ द ग्रीन कैंपस इन कश्मीर वैली है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो है ऑफ रोडिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन होती है और फिर वो फ्लड्स का वजह बन जाता है? देखिए, ऑफ रोडिंग से पहले ही जो है नीचे छोटा जो वेजिटल कवर है वो खत्म हो जाता है, और इस वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। और जो गाड़ियों के टायर वगैरह होते हैं वो सारे जो है एक ट्रैक बनाते हैं, जिसके जरिए फिर जंगल स्मगलर्स को भी अपनी गाड़ियां ऊपर ले जाने का मौका मिलता है। टिपर्स वगैरह ले जाते हैं और एक्सेस उनके लिए आसान बन जाती है। और फिर जहां पे भी रोड जाता है वहां डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। तो डायरेक्टली ये ऑफ रोडिंग जितनी भी एरियाज है एक्टिविटीज है, इनको बैन करना चाहिए। जहाँ पे भी ह्यूमन एक्टिविटी हो जाती है वहाँ पे न सिर्फ जो है पेड़ पौधों को ये खतरा लाहक हो जाता है, वहाँ पे जो हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, रीछ वगैरह, इनको भी खतरा, उनके हैबिटेट पे भी कब्जा हो जाता है। और आप देखते हैं कि यहाँ पे जंगली जानवर जंगल छोड़ के फिर आबादियों में
आ जाते हैं। तो यही वजह है, ये जो एक्टिविटीज हम ह्यूमन एक्टिविटीज जो इनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यही वजह है कि वो हमारे फिर हैबिटेट में भी दावा बोलते हैं। देखिए मेरे ख्याल से जो ऑफ रोड वगैरह होते हैं तो वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर वो वाले एरियाज बहुत कम टच होने चाहिए। अगर वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं तो हमारा एनवायरनमेंट वहीं से पोल्यूट होना शुरू हो जाता है। दूसरा कि वो जो रास्ते वहाँ पे बन जाते हैं तो वहाँ से फिर कोई भी स्मगलर्स या कोई भी नेगेटिव जो एक्टिविटी करने वाले लोग हैं तो उनको एक रास्ता मिल जाता है। प्लस हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही हज़ार्ड पहुंचता है। आप देखें, क्योंकि लोग इतने इग्नोरेंट है कि खा पी के हम नॉर्मली भी ऐसे ही चीज़ें फेंकते हैं, प्लास्टिक्स वगैरह। वी टेक फूड स्टफ विद अस एंड लीव द पैकेजेस एनीवेयर। तो ये भी एक एनवायरनमेंट को हज़ार्ड है, तो इट शुड बी बैंड, इट शुड नॉट बी एनकरेज्ड। इट्स वेरी वेरी हज़ार्डस टू आवर एनवायरनमेंट। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इस पे टफ जी 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 देखिए लोग इतने सेंसिटिव, मैं बोलूँगी हम सारे एनवायरनमेंट के को लेके इतने सेंसिटिव नहीं है। तो गवर्नमेंट का एक बहुत ही पॉजिटिव रोल होना चाहिए इसके बारे में कि स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी वेरी क्लियर, गवर्नमेंट शुड हैव वेरी क्लियर पॉलिसीज अबाउट इट। तभी जाके एनवायरनमेंट की जो अवेयरनेस भी है और इसका ये फॉलो भी होगा प्रोटोकॉल के। इन जंगलों को हमें बचाना है, ग्रीनरी को हमें बचाना है, इसको हमने पोल्यूट नहीं करना, या हमें ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी जो होती है इन जगहों पे तो वो कर्ब होंगी। हमने देखा कि यहाँ पर आपने ये ग्रीनरी रखी है, क्या ये भी एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स? एग्जैक्टली देखिए ग्रीनरी है तो हम है। शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का फरमाना है कि अनपोश तेलियल वन पोश है। हमारी तो लाइफ लाइन ही ग्रीनरी है। प्लस देखिए सीधी सी बात है, हमारी ज़िंदगी ही इस पर डिपेंड है। अगर ग्रीनरी नहीं होगी, हमें एनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो एनवायरनमेंट पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। प्लस देखिए एस्थेटिक, ये कितना मेरे माइंड सेट को कितना एक पॉजिटिव असर इसका होता है ग्रीनरी का, कि हमें बहुत अच्छा फील होता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने यहाँ पे ग्रीनरी। मैं आपको अपना पर्सनल ये बताती हूँ व्यू कि मैंने ये जब मेरा ट्रांसफ़र होने वाला था तो आई थिंक आई चोज दिस स्कूल मोस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रीनरी। With campus and Umesar Gulmir Farid, Srinagar for India Today.